Hello and good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts standard 11. Yes, we are going with the fourth chapter of your second book, that is bills of exchange. In our last video we have gone through with the first question, in which it was the first use or disposal of the bill. That was to keep with oneself up to the maturity date. In today's e-class, we are going to learn about the second use or the disposal of the bill, that is, to discount it with a bank or a shroff before the maturity date. So let us begin with the theory portion first. Okay, now let us proceed. In our last video, we have seen the first topic of disposal or uses of a bill, in that it was to keep the bill with oneself up to the maturity date and collect the money on the maturity date. Based on this, I have taught you question number 1 and also given you illustration as the homework. In our today's video, we are going to see the second disposal or the use of the bill, and the topic is to discount the bill with a bank or a shroff before the maturity date. Maturity date आए उसके पहले ही हम क्या कर रहे हैं, बैंक से वो बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं. Now, what is this topic? Let us first go through with the theory portion. If this is the image of your textbook on page number 81, if the holder of the bill is in need of money before the maturity date, then the bill can be discounted with a bank or a shroff before its maturity date and money can be received immediately. Yes. Now, अगर maturity date जब भी है उसके पहले ही होल्डर को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा? वो बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको BR कहते हैं, वो लेके जाएगा बैंक के पास. बैंक उस बिल को डिस्काउंट कर देगी और जिसके पास ये बिल होगा वो इस पैसों का हकदार है. फॉर दैट होल्डर of the bill and the drawer of the bill must have a good credit in the market. The bank or the shroff does not pay the entire amount of the bill but deducts an amount of discount from the total amount and pays the remaining amount. Yes, जिसके पास बिल रिसीवेबल है वो बैंक में लेकर जाता है. बैंक वाला उस बिल के ऊपर, से फॉर एग्जांपल 10,000 का वो बिल है, अमाउंट 10,000 लिखा हुआ है, तो क्या करेगी बैंक? बैंक उसको पूरा का पूरा 10,000 रुपीस देगी नहीं, उसे से फॉर एग्जांपल 9,800 जितना देगी. सो the bank or the shroff does not pay the entire amount, and this amount of discount is called discount of bills. This is an income for the bank or a shroff, whereas it is an expense for the holder of the बिल. ये बिल जिसके हाथ में है उसके लिए ये एक्सपेंस इसके लिए है, क्योंकि अगर वो मैच्योरिटी डेट तक वेट करता तो उसको पूरा 10,000 रुपीस मिल जाता, पर बिफोर द मैच्योरिटी डेट उसको पैसों की जरूरत थी, इसके लिए उसने डिस्काउंट करवाया है, तो जितना भी उसको लेस होके मिल रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट. Now let us go through with one of the illustration. Amount of discount on bill is depends on the amount of bill, terms of bill, time of discount the bill and rate of discount, etc. Now let us go through with the illustration. What it is? There is a bill of 20,000 and the period of the bill is 3 months. The bill is drawn on 1/10/16 if the bill is discounted on 4/10/16 at a 10% per annum. Now 1 तारीख को बिल बना है और सीधा हमने इमीडिएटली 4 डेट को हमने उसको क्या कर दिया है, डिस्काउंट करवा दिया है. सो कितना डिस्काउंट डिडक्ट होगा? Amount of bill, that is 20,000. Rate of annual discount, that is 10% upon 100 because it is the sign of percentage. Period for the date of discount, कितने months का bill हमने draw किया है? 3 months का draw किया है, so 3 divided by 12. So amount results is 500 rupees. Fine. Now the bank or the shop will deduct the discount of 500 and pay the remaining 19,500 to the person discounting the बिल. जिसने भी
बिल को डिस्काउंट करवाया, उसको 20,000 के 20,000 पूरे नहीं मिलेंगे, 500 डिस्काउंट कट होके मिलेगा एंड दैट इज 19,500. नाउ सपोज द बिल इज डिस्काउंटेड ऑन 4/11 इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग इमीडिएटली. तो फिर क्या होगा? अगर एक महीने के बाद अगर अपन डिस्काउंट करवा रहे हैं तो यहां पे अब कितना पीरियड बचा है? एक महीना तो वो बिल हमारे पास था, अब कितना बचा है? 2 मंथ्स. ऊपर वाले केस में कितना था? फुल 3 मंथ्स था. हमने 4/11 को डिस्काउंट करवाया है तो 2/12 then it results to 333 rupees. Is this clear? Now let us go through with question number 2 based on this topic, that is discounted with a bank or a shroff. First, before starting to that question number, let us first go through with the journal entries in the books of drawer as well as drawee under the condition when trader has given it to the bank or shroff for discount purpose before its maturity. यहां पे लिखा हुआ है clearly, holder of the bill who discounts the bill with a bank or a shroff before the maturity date. Immediately उसको पैसा मिल जाता है, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक ने उससे डिस्काउंट कट कर लिया है, मैंने आपको एग्जांपल इलस्ट्रेट किया था. 10,000 की जगह पे 9,800 उसको मिल रहे हैं, सो 200 विल बी दिस डिस्काउंट एंड बिल रिसीवेबल उस होल्डर की तरफ से जा रहा है, इसके लिए यहां पे बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट. फाइन. ऑन द मैच्योरिटी डेट यहां पे होगा नो एंट्री. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको बिफोर मैच्योरिटी पैसा मिल चुका है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो होल्डर था, जो ट्रेडर था, उसे कुछ भी मिलेगा नहीं. पैसा किसको मिलेगा? बैंक को, बिकॉज बैंक ने उस टाइम पे हमारे बिहाफ पे काम किया. नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई में जब बैंक में चेक गया था, बैंक में बिल रिसीवेबल गया था, तब नो एंट्री होगा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उस टाइम पे, बिकॉज ये ड्रॉई है. इसका तो जब एज एंड व्हेन मैच्योरिटी पीरियड आएगा तभी ही अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा, तब तक इसमें नो एंट्री. और मैच्योरिटी पीरियड में क्या होगा? उसका बिल्स पेबल जो अब तक लायबिलिटी था वो अभी पे कर रहा है, इसके लिए यहां पे वो कैंसिल होने के लिए डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक के थ्रू वो पैसा अपना पे कर देगा. ओके, सो दीज वर द जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू disposal of bill under the condition that bill is discounted with bank. Fine. Question number 2 on page number 104. Sunny sold goods of rupees 52,000 to Vishnu Bhai on 16/6/2016, against which Vishnu Bhai accepted a 3-month of bill of 52,000 on 26/16. On 2/7/16, Sunny discounted this bill with the bank at a discount of rupees 520. Vishnu Bhai paid the bill on maturity date. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. Now, in this question, Sunny has sold goods to Vishnu Bhai. Sunny ने goods Vishnu Bhai को 52,000 के बेचे हैं. And the bill is of 3 months, drawn on 26, that is 20th June. Who will draw the bill? The one who has sold goods on credit. That means Sunny has drawn the bill and Vishnu Bhai has accepted the bill. That means bill receivable is for Sunny and bills receivable is for Vishnu Bhai. Now, on 2nd July, Sunny was in the need of money, so he discounted that bill with bank at a discount of rupees 520. That means Sunny को पैसों की जरूरत थी, इसके लिए Sunny बैंक के पास गया. बैंक में उसने ये अपना खुद का जो BR था, बिल रिसीवेबल, वो बैंक को दे दिया और बैंक ने 52,000 की सामने 520 उसके बिल में से कट कर लिए और रिमेनिंग उसको बैंक में दे दिया. विष्णु भाई ने मैच्योरिटी डेट जब आया 3 मंथ्स के बाद, तब पैसा पे कर दिया है. हमें दोनों की बुक्स में एंट्रीज दिखानी है. सो लेट अस बिगिन विथ इट्स जर्नल एंट्रीज. Journal entries in the books of Sunny
the one who is the drawer, and even journal entries in the books of Vishnu Bhai, drawee. सनी के लिए बिल्स रिसीवेबल है. कब सनी ने गुड्स सोल्ड किए हैं? ऑन 16/6/16. ये दिन गुड्स बेचे हैं. किसने? सनी ने. किसको बेचे हैं? विष्णु भाई को. तो सनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा? विष्णु भाई's अकाउंट डेबिट, विष्णु भाई's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 52,000. ओके. और नरेशन यहां पर आपको लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू विष्णु भाई. ओके. ऑन 20 जून 2016 सनी ने बिल बनाया है. सो फॉर सनी दिस इज bills receivable. So bills receivable being the current asset account debit to Vishnu Bhai's account of 52,000. Okay. Now maturity date will come after 3 months. But before the completion of that date or before the maturity date, विष्णु भाई जब पैसा भरेगा उसके पहले ही सनी को पैसों की जरूरत पड़ जाती है. इसके लिए सनी ने वो बैंक में बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा दिया है. ऑन 2 जुलाई बैंक उसका बिल रिसीवेबल ले लेगी और सामने उसको पैसा दे देगी. नाउ बैंक विल बिकम द रिसीवर ऑफ सनी. सनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज यहां पे बैंक में उसको पैसा मिलेगा. डिस्काउंट विल बी द एक्सपेंस. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ये जो बिल रिसीवेबल आज दिन तक उसका असेट था वो किसके पास चला जा रहा है? बैंक के पास चला जा रहा है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पे होगा क्रेडिट. ओके. डिस्काउंट बैंक ने जो लिया है दैट इज 520. नाउ इट इज 52,000 माइनस 520. बैंक उसको 51,480 बैंक में डिपॉजिट उसके अकाउंट में कर देगी. एंड बिल रिसीवेबल इज ऑफ 52,000. नाउ ऑन द डेट व्हेन गुड्स वर सोल्ड और परचेज इज नॉट इंपॉर्टेंट. द डेट ऑन विच द बिल वॉज प्रिपेयर्ड. बिल बनाया था हमने कब? 20/6 को. 20/6 से हमें मंथ्स 3 काउंट करने हैं. दैट विल बी 7, 8 and 9. That is July, August and September. ये 3 months उसका क्रेडिट पीरियड होगा. फाइन. नाउ आफ्टर 3 months we are supposed to add 3 more grace days. So date is 20th. 20th के बाद grace days ऐड करो तो 21, 22, 23. 23 September. 23rd September 16 will be the maturity date. आज ये दिन पे विष्णु भाई पैसे देगा. देने वाला किसको था? विष्णु भाई सनी को. पर सनी को किसने दे दिए हैं? बैंक ने. बिकॉज सनी को पैसों की जरूरत थी. सनी से वो बिल रिसीवेबल अभी कहां चला गया है? बैंक के पास. नाउ हु इज होल्डिंग द बिल? बैंक इज होल्डिंग द बिल. सो हु हैज द राइट्स टू टेक दैट अमाउंट? बैंक. अब ये पैसा किसको भरेगा विष्णु भाई? बैंक वाले को देगा. और जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा तब सनी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री पास करेगा नहीं. बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस
बिटवीन विष्णु भाई एंड बैंक, इसमें सनी के यहां पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा. Is this clear? So these were the entries in the books of drawer. अभी हम किस में करेंगे? In the books of drawee. 16/6 को विष्णु भाई ने क्या किया? 16/6/16 को विष्णु भाई ने परचेज किया. So purchase account debit to किससे परचेज किया है? सनी से. To सनीज अकाउंट. क्रेडिट पे, उधार पे उसने परचेजिंग किया है. फाइन. इज दिस क्लियर? और इसने बिल कब एक्सेप्ट किया? जिस दिन सनी ने बिल बनाया. सनी ने बिल किस दिन बनाया है? 20 जून को. 20 जून को बिल बनाया. उसी दिन विष्णु भाई ने उसको एक्सेप्ट किया है. दैट मीन्स उसने साइन किया है और ये कसम खाई है कि मैच्योरिटी पीरियड जब भी आएगा वो उसको पैसा दे देगा. इसके लिए बिल्स पेएबल हो जाता है ड्रॉई के लिए. फाइन. और यहां पर आ जाएगा आपका Sunny's account debit to bills payable is the current liability to bills payable account. Fine. Of amount 52,000. Fine. Now maturity date will come on 23rd September. Before that there is one entry जो सनी के बुक्स में है. सनी बैंक के पास गया था मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले. मैच्योरिटी पीरियड जब तक नहीं आएगा तब तक विष्णु भाई को कोई भी अफेक्ट होगा नहीं. सो ऑन 2 जुलाई, यहां पे 2 जुलाई 16 में ये करेगा विष्णु भाई नो एंट्री, बिकॉज ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? सनी और बैंक के बीच में. सनी बिल रिसीवेबल को बैंक में देकर आया और बैंक ने उसको पैसा दे दिया और उससे विष्णु भाई को कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा तब तक विष्णु भाई पैसा नहीं देगा. नाउ इट्स द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी कब आई है? आफ्टर 3 months ऑन 23rd September 2016. सनी को पैसा नहीं मिलके विष्णु भाई पैसा देगा बैंक में. इसके लिए यहां पे बैंक हो जाएगी गिवर और जो अब तक इसका बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी था वो कैंसल हो जाएगा. इसके लिए हम इसको रिवर्स इफेक्ट देंगे. डेबिट करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक इज द गिवर ऑफ हाउ मच? यहां पे आएगा 52,000. इज दिस क्लियर? और नरेशन हर एक में लिखना है बीइंग अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट आने पर पेमेंट हो गया है. आई होप दिस वॉज अंडरस्टूड. And now your today's homework is illustration number 3, which is as good as question number 2, which we have studied right now. So both these questions will be in your today's homework. Thank you students for listening. Please to go through with once again the video so that it becomes more clear to you people.